topic is biomedical waste management. Definition: biomedical waste, as the name indicate, biological or medical waste, the waste generated from the biological or medical sources. तो definition according to WHO: any waste which is generated during the diagnosis, treatment or immunization of human being or animal or research activity pertaining to or in the production of testing of biological or in the health कैंप, है ना. किसी भी टाइप का वेस्ट जो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल, ठीक है, ये किसी टाइप की रिसर्च एक्टिविटी, ये किसी कैंप से जनरेट हो, हेल्थ कैंप से जनरेट हो, उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलेंगे. आफ्टर दैट द टर्मिनोलॉजीज: हॉस्पिटल वेस्ट. Hospital waste is the waste which is biological or which include biological or non-biological that is discarded and is not intended for future use. मतलब इस waste को हम future में use नहीं कर सकते हैं, एक बार use किया उसके बाद इसको discard करना होता है. After that, medical waste. It refers to material generated as a result of patient diagnosis, treatment, immunization of human being or the animal. Then infectious waste. There is a portion of medical waste that could transmit an infectious disease. जिस वेस्ट से कोई डिजीज ट्रांसमिट हो, दैट इज कॉल्ड एज इन्फेक्शियस वेस्ट. और आफ्टर दैट पैथोलॉजिकल वेस्ट, जो भी किसी पर्सन के रिमूव्ड बॉडी पार्ट हैं, ये ऑटोप्सी से जो वेस्ट जनरेट होगा, ऑटोप्सी मीन्स पोस्टमार्टम, ठीक है, कोई मेडिकल प्रोसीजर हुआ है, कोई ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट है, दैट कम्स अंडर पैथोलॉजिकल वेस्ट. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेस्ट. आफ्टर दैट द सोर्सेज ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट की हेल्थ फैसिलिटी में वेस्ट कहाँ कहाँ से जनरेट होता है. मेजर सोर्सेज आर हॉस्पिटल, लैब, रिसर्च सेंटर, एनिमल रिसर्च, ब्लड बैंक, नर्सिस होम और मॉर्चरीज, डेड हाउस जिसको बोलते हैं. और माइनर सोर्सेज कौन कौन से हैं? दीज आर क्लिनिक्स, डेंटल क्लिनिक्स, होम केयर, कॉस्मेटिक क्लिनिक्स, paramedics, funeral services or institutions. Then the category of person exposed to risk of infection. कौन से ऐसे पर्सन हैं जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के रिस्क में रहते हैं? These are sanitation worker and the environment of the hospital, medical and paramedical staff, and patient and the general public. जो patient है या उनके attendant है, they are also at the risk of infection. After that, the classification of hospital waste. Hospital waste is classified into biomedical waste. Biomedical waste is classified into two classes, non-hazardous waste और hazardous waste. Non-hazardous waste मतलब which is non-infectious, ठीक है. तो जो 80%, 75 to 90 वैसे दिया है, बट एवरेज अगर लेंगे तो जो 80% वेस्ट हॉस्पिटल में जनरेट होता है, इट इज़ non-hazardous waste and 20% waste is the hazardous waste. Non-hazardous waste include जैसे कि स्टेशनरी, रैपर्स, पेपर, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, है ना, जो जनरल वेस्ट है. और hazardous waste include infectious waste and toxic waste. Infectious waste and toxic waste. Infectious waste is 15% and toxic waste is 5%. Infectious waste include non-sharp, sharp, plastic disposable, liquid waste, ये ड्रेसिंग, सॉइल ड्रेसिंग with blood, pus, body fluid, laboratory sample, etc. और toxic waste include radioactive waste, pharmaceutical waste, discarded glass, pasteurized container, chemical waste, cytotoxic waste और incinerator ash. These come under the highly toxic waste. क्लियर हो गया ना.
Biomedical waste is divided into mainly two categories, non-hazardous waste and hazardous waste. 80% waste is non-hazardous and 20% is hazardous. 20% include infectious waste and toxic waste. Infectious waste includes these and toxic waste include these. As shown here, 80% waste is non-infectious waste, 15% is infectious waste, and जो 5% बच गया that is toxic waste. It include chemical and pharmaceutical waste, sharp, radioactive, cytotoxic and heavy metals. 80% waste generated in hospital care facility is non-hazardous and non-toxic. Biomedical waste generated from medical activity are hazardous, toxic and even lethal. पोजेस हाईली पोटेंशियल फॉर डिजीज ट्रांसमिशन. जो इन्फेक्शियस वेस्ट है उससे डिजीज ट्रांसमिशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और उसमें से 15% इज इन्फेक्शियस वेस्ट एंड 5% इज, सॉरी दिस इज मिस्टेकन, 5% is toxic waste. After that, hazard associated with hospital waste. It may cause disease such as hepatitis B, C, HIV, nosocomial infection and also environmental pollution and decontamination of hospital waste. कि जो इन्फेक्शियस वेस्ट है उसको कैसे डिकंटेमिनेट करना है. डिस्पोजेबल आइटम सच एज ग्लव, सिरिंजेस, आईवी बॉटल, कैथेटर आर पंक्चर्ड. जैसे कि आईवी बॉटल्स भी होती हैं उनको कट करना होता है ना, डिस्कार्ड करने से पहले दे शुड बी पंचर ताकि उनका रीयूज ना हो पाए. और जो सिरिंजेस हैं, नीडल को कट करना है और सिरिंज कटर से कट करेंगे और सिरिंजेस को भी प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है. केमिकल डिकंटेमिनेशन में ब्लीच और सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं. ब्लीच 10 ग्राम ब्लीच इन 1 लीटर वाटर में यूज़ करेंगे और 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज़ करेंगे. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज डीप बरियल. After that, the categories of the waste. The hospital waste is divided into mainly 10 categories. Category 1 contain human anatomical waste. Human anatomical waste में आएंगे human tissue, organ, body parts. Second category include animal waste. Animal tissue, organ, body part, carcasses, bleeding part, fluid, body, these comes under the animal waste. And method of disposal is incineration, या तो इनको बर्न कर देते हैं, ये डीप बरियल, डीपली इनको जमीन में डग कर देंगे. आफ्टर दैट कैटेगरी नंबर 3, microbiology or biotechnological waste. It include laboratory waste, and the method of disposal is local, autoclaving, microwaving or incineration. Category 4 include sharp waste. It include needles, syringes, scalpel, blade, glass, etc. And the method of disposal is disinfection, chemical treatment. पहले इसको chemical के साथ, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड है उसके साथ disinfect करेंगे, then autoclaving और microwaving etc. After that, category 5, discarded medicine or cytotoxic drug. You should learn these categories of waste. Waste comprising of outdated, contaminated, discarded medicine है ना, जैसे कुछ medicines expire हो जाती हैं तो they should be come under this category. Then category 6, solid waste, item contaminated with blood and body fluid including cotton dressing, soiled plaster cast, linen, bedding, other material contaminated with blood. And method of disposal is incineration, autoclaving or microwaving. Then category 7 includes solid waste. Here waste generated from disposable item other than waste sharps such as tubing, catheter or intravenous set. Next is liquid waste generated from laboratory and washing, cleaning, housekeeping and disinfecting items. After that, next is category 9, incineration ash from incinerator of the biomedical waste. जब biomedical waste को incinerate करके जो ash निकलेगी, राख निकलेगी, that comes into category 9. And disposal in municipal landfill.
After that, category 10, that is chemical waste, chemical used in the production of biological, chemical used in disinfection as insecticide, etc. And disposal method is chemical treatment and discharge into the drain. These are the categories, 10 categories of waste. These are the waste, and these are the component which comes under this waste, and these are the method of disposal of waste. After that, the steps of waste management: first is reduction, second is segregation, third is storage, fourth is transportation, and fifth is treatment. Then here shown in this figure, that generator, these are the हॉस्पिटल वेस्ट, हॉस्पिटल से जो भी वेस्ट जनरेट होगा. इन हाउस सेग्रीगेशन, उसको क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे. सेग्रीगेट करना मतलब सेपरेट करना, उसको अलग अलग जो डस्टबिन है उसमें अलग अलग कलर कोडेड बैग में उसको सेपरेट कर देंगे. देन कॉमन स्टोरेज पॉइंट एट द हॉस्पिटल. फिर जो भी सेग्रीगेटेड वेस्ट है, अगर जो पॉलीथीन है या जो बैग है वो फुल हो गया तो उसको स्टोरेज पॉइंट में लेके जाते हैं. हॉस्पिटल में एक एरिया होता है जहाँ पे पूरे हॉस्पिटल वेस्ट को स्टोर किया जाता है, तो वहाँ लेके जाएंगे. आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेशन, अप्रूव्ड स्पेशल व्हीकल. तो बायोमेडिकल वेस्ट की ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल व्हीकल होते हैं, तो उस व्हीकल में उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे एंड जहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट होनी है. अनलोडिंग द वेस्ट कलेक्टेड, ट्रांसपोर्ट करके उसको जहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड होनी है वहाँ लेके गए तो उसकी अनलोडिंग करेंगे, उसको वहाँ से व्हीकल से बाहर निकालेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे आइदर थ्रू इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग और श्रेडिंग. आफ्टर दैट ट्रीटमेंट के बाद उसका डिस्पोजल करेंगे, रिसाइकलिंग और लैंडफिल. ये पूरी प्रोसेस बताई गई है. और जो वेस्ट वाटर है, इट शुड बी गो टू द ट्रीटमेंट प्लांट एंड इट शुड बी रीयूज्ड. देन फर्स्ट स्टेप इज रिडक्शन और वेस्ट सर्वे, है ना. जो भी हॉस्पिटल में वेस्ट जनरेट होता है उसका पहले सर्वे करना है. डिफ्रेंशिएट द टाइप ऑफ वेस्ट की, कहाँ पे किस टाइप का वेस्ट जनरेट होगा. क्वांटिफाई द वेस्ट जनरेटेड, कौन, जैसे अलग अलग वार्ड्स होते हैं तो कहाँ पे कितना वेस्ट जनरेट होगा, क्वांटिटी उसकी चेक करेंगे. डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ जनरेशन, कि पॉइंट ऑफ जनरेशन मतलब कहाँ पे कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, एंड टाइप ऑफ वेस्ट जनरेटेड एट ईच पॉइंट, और हर एक पॉइंट में कितना कितना वेस्ट जनरेट होगा. जैसे उसका वेट चेक किया जाता है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, है ना, कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है. डिटरमाइन द लेवल ऑफ जनरेशन एंड डिसइंफेक्शन विद इन द हॉस्पिटल. ठीक है, कितना क्या मतलब कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है और उसका डिसइंफेक्शन कैसे करना है हॉस्पिटल में. आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप इज सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट करना. तो इट रेफर्स टू द बेसिक सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द वेस्ट जनरेटेड एट द सोर्स, है ना, कि जो सोर्स था, जो जैसे वार्ड्स हैं वहाँ से जो वेस्ट जनरेट होगा उसको सेपरेट करना है. इन्फेक्शियस को अलग करना है, नॉन इन्फेक्शियस को अलग करना है, शार्प वेस्ट को अलग करना है. तो दैट इज कॉल्ड एज द सेग्रीगेशन. क्यों सेग्रीगेशन करते हैं, ताकि जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो कम हो जाए और सेफ हैंडलिंग उस वेस्ट की हो पाए. सेग्रीगेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का. इफेक्टिव सेग्रीगेशन अलोन कैन एंश्योर इफेक्टिव बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. आफ्टर दैट टिप्स वाइल डीलिंग विद इन्फेक्शियस वेस्ट. जब भी इन्फेक्शियस वेस्ट से डील करेंगे क्या क्या करना है. यूज बीन विद लिड. हमेशा ऐसे डस्टबिन का यूज करना है जिसके ऊपर ढक्कन लगा हो, और जो बायोहजार्डस सिंबल है वो उसके ऊपर लगा हुआ होना चाहिए. और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज करना है व्हाइल हैंडलिंग एनी इन्फेक्शियस वेस्ट. जब भी आप जैसे किसी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं, ग्लविंग करनी है. और चेंज द पॉलीथीन व्हेन द 3/4 पार्ट इज फुल और इन ईच शिफ्ट, है ना. जब उस वेस्ट बैग यूज कर रहे हैं वेस्ट डिस्पोजल के लिए, जब वो 3/4 फिल हो जाता है तो उसको चेंज कर देना है, ताकि अगर पूरा फुल हो जाएगा तो जो वेस्ट है वो बाहर गिर जाएगा. दैट्स वाई 3/4 पार्ट शुड बी फुल एंड चेंज द पॉलीथीन. बिफोर ट्रांसपोर्टिंग द वेस्ट, पॉलीथीन बैग मस्ट बी शील्ड. उसको प्रॉपरली बंद करना है. दीज आर द bag used for the segregation of the waste. It include yellow, red, translucent. Translucent means white, or
blue and green for general waste. Yellow yellow bag or dustbin is used for post-operative body part, placenta, plaster of Paris, pathological waste, cotton waste, dressing, जो भी इन्फेक्टेड वेस्ट होता है, आइदर बेडिंग, बॉडी फ्लूइड, कंटेमिनेटेड पेपर, फेस मास्क, कैप, साइटोटॉक्सिक, एक्सपायर्ड, डिस्कार्डेड मेडिसिन एक्सेट्रा. ठीक है, ये याद करना है प्रॉपरली आपने. तो रेड कैन बी यूज्ड फॉर सिरिंज, प्लास्टिक वेस्ट के लिए ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है. सिरिंज विदाउट नीडल, आईवी सेट, कैथेटर, ग्लव्स, यूरिन बैग, डायलिसिस किट, आईवी बॉटल. तो जब भी इनको डिस्कार्ड करना है उससे पहले ये सारी चीज़ें क्या करनी है, कट करनी है. ठीक है, आइदर सीजर की हेल्प से या ब्लेड की हेल्प से ये कट करने हैं. आफ्टर दैट next is white or translucent bag. It is used to discard needle, syringes with fixed needle, blades or scalpel. After that blue can be used to discard glass, broken glasses, ampule, lab slide, metal, nail, metallic body implant and the scissor. After that next is green for general waste. आइदर वेट और ड्राई वेस्ट के लिए ब्लू बीन का यूज़ करते हैं, वेट वेस्ट के लिए ग्रीन का, है ना. क्लियर है. आफ्टर दैट स्टोरेज की, जैसे मैंने आपको बताया कि सेग्रीगेशन हो गई, उसके बाद जब बैग फुल होगा तो उस वेस्ट को क्या किया जाता है, हॉस्पिटल में किसी पर्टिकुलर प्लेस पे स्टोर किया जाता है ना, ट्रांसपोर्टेशन से पहले जहाँ पे उस वेस्ट को रखते हैं, दैट इज स्टोरेज. वंस कलेक्शन अकर देन द बायोमेडिकल वेस्ट इज स्टोर्ड इन प्रॉपर प्लेस. सेग्रीगेटेड वेस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी नीड टू बी कलेक्टेड इन आइडेंटिफिएबल container. The duration of storage should not exceed 8 to 10 hours in a big hospital and 24 hours in nursing home. Each container should be clearly labeled to show the ward where it is kept. ये हर एक जो वेस्ट है 8 से 10 घंटे से ज़्यादा उसको नहीं रखना है हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, और छोटे हॉस्पिटल में 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रखना, और प्रॉपर लेबलिंग उन बैग के ऊपर होनी चाहिए. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. स्टोर सेग्रीगेटेड वेस्ट शुड बी ट्रांसपोर्टेड वेरी केयरफुली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द फाइनल डिस्पोजेबल साइट, जहाँ पे उसको ट्रीटमेंट, उसको हमने डिस्कार्ड करना है. ठीक है, जहाँ से वेस्ट जनरेट हुआ, जहाँ उसको डिस्कार्ड करना है, तो केयरफुली हमने उसकी ट्रांसपोर्टेशन जनरेशन से डिस्पोजल तक करनी है. एंड ट्रांसपोर्टेशन से पहले ये प्रॉपरली चेक करना है कि जो बैग है दैट शुड बी प्रॉपरली सील्ड. आफ्टर दैट the transportation devices are trolley, wheelbarrows, manual loading should be avoided as far as possible because there might be chances of spillage of the waste. The container should be tied before transportation and container should be accompanied with a signed document by nurse, doctor, mention date, shift, quantity and designation. ये सारी चीज़ें वो कंटेनर के ऊपर होनी चाहिए कि इसका वेट कितना है, कौन सी डेट का वेस्ट है, शिफ्ट कौन सी थी, क्वांटिटी कितनी है. This is a transportation van, and the 5 ways of treating medical waste are incineration, thermal, eradicative, chemical or biological treatment of the waste. These are the method of waste disposal. After that, what is the role of nurse in waste disposal? Avoid needle stick injury. Never recap the needle. ये मैंने आपको पहले भी बताया, कभी भी needle को recap नहीं करना है. Avoid spilling and clean them with the disinfectant. स्पिलिंग अवॉइड करनी है, अगर हो जाती है तो डिसइंफेक्टेंट से उसको क्लीन करना है. प्रॉपर लेबलिंग करनी है बैग्स की. मेक द प्रोविज़न फॉर सेफ सेग्रीगेशन, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मेडिकल वेस्ट. यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज़ करने हैं टू अवॉइड इन्फेक्शन, इम्यूनाइज सेल्फ एंड अदर. टाइम टू टाइम एंड मेंटेन द रिकॉर्ड. रिपोर्ट मेजर एक्सीडेंट्स. अगर किसी को नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, कोई मेजर एक्सीडेंट होता है तो उसको रिपोर्ट करना है. रेगुलर विजिट ऑफ द वार्ड एंड हाई रिस्क यूनिट. दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक एंड दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक.